चलिए up to this point basically we have covered the basics of JavaScript in the sense कि हमने वेनिला जावास्क्रिप्ट में जो भी फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन की है या एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा, दैट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेनिला जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंड आल्सो नोन एज द प्लेन जावास्क्रिप्ट. So after looking at the basics of the JavaScript, we'll have looked at basically three different topics. First one was browser object model and document object models. Second one was the navigation and manipulation aspect of the DOM, okay, which is also known as traversing. Navigation को traversing भी कहते हैं, ठीक है, and then manipulation part of it. And finally we looked at the form validation using JavaScript, ठीक है. But during this basically process we have only seen the plain JavaScript, जिसमें हम either we were having like our own function for the basic validation, our own function for the data format validation, and whatever we have done in the plain JavaScript. From today onward, in the next two lectures, we will cover the library of JavaScript, which is known as jQuery library. How basically jQuery facilitates or helps you. तो आपके पास जो plain JavaScript में उसमें आपको जो कोई भी फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल इन 10 लाइंस ऑफ कोड, तो jQuery लाइब्रेरी बेसिकली प्रोवाइड्स यू विद हेल्पर फंक्शंस, ठीक है, and you can use these helper functions for example to implement the same functionality in for example 3 to 4 lines of code. So it reduces the lines of code in the implementation, ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर और built-in functions are related to the jQuery effects, जिस तरह हाइड और शो करते हैं, ठीक है, ओपेसिटी वैल्यू को चेंज करना. फिर एजेक्स से रिलेटेड जो इसका फंक्शन है दैट इज आल्सो वेरी लाइक समराइज्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन एज कंपेयर टू द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. So these all basically topics we will cover in the jQuery library. So let's start with the lecture. This is a summary of today's lecture. So there are two basically sections of this lecture, ठीक है. First four topics, these four topics, these are related to the basics of the JavaScript, ठीक है, where you have to understand the, for example, first you have to look at the introduction of the JavaScript, what is jQuery, what is jQuery, for example when it was developed, and what are the features of the jQuery, things like that, ठीक है. In the second part we will discuss the syntax of the jQuery. तो आपके पास जो plain JavaScript है उसमें एक different syntax आपने देखा है, ठीक है, लेकिन jQuery के अंदर जब आपने statements write करनी है then you have to use basically a separate syntax, and that includes like jQuery object and a selector inside the parentheses, and then basically calling the function related to the jQuery library. Third part is the jQuery selectors. तो इसमें आप जो within the parentheses selectors write करते हैं, there are number of ways, and that selection method resembles to the CSS selection method. जिस तरह आप CSS फाइल के अंदर selectors write करते थे, very much in the same way you will write selectors in here as well, ठीक है. And then there are different way of attaching or triggering the events in the jQuery. jQuery में आप events जो डिफरेंट तरह से अटैच करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. इसमें जो इवेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली मेथड्स, ठीक है, इनको इवेंट मेथड्स भी कहते हैं. सो यू कैन राइट अ कॉल बैक फंक्शन विद इन द मेथड, ठीक है. आप किसी भी फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कॉल बैक फंक्शन राइट करते हैं और वहीं पे उसकी डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं. एंड द फाइनल टू टॉपिक्स DOM ट्रैवर्सिंग एंड DOM फिल्टर्स, बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द jQuery, ठीक है. And these terms should be familiar to you. For example, the first term DOM traversing should be familiar in the sense it is like DOM navigation that we have discussed in the plain JavaScript. So in this application part of the lecture we will see that how the traversing of the DOM is different in the jQuery as compared to the JavaScript, ठीक है. What kind of more helper functions are available in the jQuery than they were in the JavaScript, ठीक है, and how are they different from the JavaScript. So kind of comparison draw करेंगे, ठीक है. And the DOM filters basically there are the set of methods which were not there in the JavaScript, ठीक है. तो ये सिर्फ jQuery के अंदर कुछ ऐसे फिल्टर मेथड्स हैं जो कि आपको
एक्सटेंडेड सेट ऑफ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं विच वाज नॉट अवेलेबल इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो दिस इज अ समरी, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो व्हाट इज jQuery? jQuery इज अ लाइट वेट, तो इसका जो मिनिफाइड और ये वर्जन है दैट इज 30 KB, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास bootstrap.min.js होता था, इसी तरह आपके पास jQuery.min.js इसका फाइल का वर्जन है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली 30 KB एंड ऑन देयर बेसिकली वेब पोर्टल दे आल्सो क्लेम दैट इट इज फास्ट। अपने वेब पोर्टल पे उन्होंने ये भी क्लेम किया हुआ है कि ये फास्ट है ना, लेकिन इंडिविजुअल एस्पेक्ट में देखें, सेपरेटली देखें तो ये फास्ट होगी, बट व्हेन वी ड्रॉ द कंपैरिजन विद अदर बेसिकली लैंग्वेजेस, सो देन इट इज़ नॉट फास्ट। फॉर एग्जांपल अगर इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करें, सो देन इट इज़ नॉट फास्ट देन द प्लेन जावास्क्रिप्ट। अगर इसको रिएक्ट के साथ कंपेयर करें या और जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, तो इट इज़ नॉट फास्ट देन द रिएक्ट एंड अदर लाइब्रेरीज। लेकिन बहरहाल दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, उन्होंने अपना मार्केटिंग करनी है। दैट्स वाई ऑन देयर web page, if you go to the web page from where you can download the jQuery library, at the very first statement they have written jQuery is a fast and small and things like that, ठीक है। तो मैंने fast पहले write किया था, फिर मैंने इसको remove कर दिया because it is kind of illogical when we compare it with other similar libraries, ठीक है। So it is not as fast as plain JavaScript is because it is like built as an overlay। तो आपके पास नीचे plain JavaScript ही है, इसके ऊपर जो jQuery लाइब्रेरी है दैट इज बिल्ट एज एन ओवरले ओवर द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो jQuery के अंदर तो आपके पास जस्ट मेथड है ना, ये लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स, वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शन राइटिंग, ऑल दीज पार्ट ऑफ द बेसिकली एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जिसमें जावा है या PHP लैंग्वेज है या जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली दे आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन jQuery प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड्स यू विद द सेट ऑफ हेल्पर फंक्शंस या एक्सटेंडेड सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच वर नॉट देयर इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जब ये ओवरले है तो एट द बैक एंड बेसिकली इट इज यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, सो देयर इज वन मोर स्टेप इन्वॉल्व्ड व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नीचे, उसका प्रोसेसर या जो भी उसकी हार्डवेयर है, तो जावास्क्रिप्ट इज वन स्टेप close to the system as compared to the jQuery. So jQuery can't be fast from the plain JavaScript. So this is the reason. So there are many blogs written where they have compared basically कि अगर कोई भी आपने क्यूरी या प्रोसेस करना है या पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है यूजिंग jQuery, how much time it takes in milliseconds for example, and how much time it takes for the JavaScript to execute the same functionality, ठीक है। तो ये आपको इससे रिलेटेड अगर आपने स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको काफ़ी ब्लॉग इससे रिलेटेड मिल जाएंगे ओवर द वेब, ठीक है। तो jQuery इज अ लाइट वेट, फीचर रिच, जिस तरह कि मैंने अभी बताया, देयर आर सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइडेड इन द jQuery विच आर नॉट देयर इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं रिलेटेड टू द इफेक्ट्स, रिलेटेड टू एनिमेशंस, ठीक है, एंड रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल सेलेक्टर्स जिस तरह राइट करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में आपको यू हैव टू राइट बेसिकली मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड लेंथी स्टेटमेंट्स एज वेल, ठीक है। But in the jQuery you can perform same function in the short statements and with less number of statements as well, ठीक है। So that's a basically feature aspect. And open source, so it is freely available JavaScript library that is based on the principle of write less, do more. So when this library was developed, the main aim of the development was write less, do more, ठीक है। तो basically आप less number of statements से ज़्यादा फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकें, दैट्स बेसिकली दैट, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू हाइड एनी ऑफ द HTML एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यू हैव टू हाइड सम पैराग्राफ, देन द जावास्क्रिप्ट बेसिकली यू हैव टू set its display property none manually. For example, first you have to select the element and then basically you have to set its display property none. While in the jQuery you have to just in a single statement select the paragraph, for example, and dot hide, or if you have to hide any particular paragraph then you can specify the ID in here. तो आप ID से किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, उसको हाइड कर दें, ठीक है। जबकि जावास्क्रिप्ट में आपको एटलीस्ट पहले एक स्टेटमेंट राइट करनी पड़ेगी जिसमें फिर कंट्रोल गेट करेंगे, फिर आप उसकी
उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, डिस्प्ले नन यूजिंग फॉर एग्जांपल CSS कोई क्लास अटैच करेंगे या कुछ डिसाइड करेंगे, तो एटलीस्ट देयर शुड बी 3 to 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, जबकि इसमें आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना हो विद रिस्पेक्ट टू द आईडी, then in the JavaScript you have to write like document dot get element by ID, and then within the parentheses you have to specify the ID, for example I1, and then basically you can perform any of the function, inner text or inner HTML, whatever it is. So what a lengthy statement it is. अगर आपने jQuery के अंदर यही function perform करना है, that you have to select any of the element with respect to the ID, then basically $sign in the parentheses using the hash I1, and that's it, ठीक है। This is the way to document dot get element by ID is a lengthy statement that you have shortened it basically with this statement, ठीक है। So jQuery basically provides the short syntax, and that's why the motto of the jQuery library development was write less and do more functionality, ठीक है। It's easy to use, so basically it's not that complex in the sense that if you have basic idea of the HTML, CSS and JavaScript, ठीक है, so then you can easily start implementing and working in the jQuery library. It's not that complex. Makes the thing like document traversal, जो document navigation भी कहते हैं, manipulation, document manipulation for example, से DOM manipulation भी कहते हैं, event handling, adding animation effects to web page, much simpler, that works seamlessly across all major browsers that exist over the web, ठीक है। तो जो भी ब्राउजर्स फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, ये jQuery लाइब्रेरी जो है, क्योंकि थोड़ी ओल्ड हो गई है, तो इन अ वे इट हैज़ गॉट द एडवांटेज कि सारे ब्राउजर्स ने इसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, और एट डिफरेंट पॉइंट इंटीग्रेट किया है। फॉर एग्जांपल अगर ओल्डर वर्जन है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास अगर ओल्डर वर्जन है तो उसमें ब्राउजर में काम नहीं करे, लेकिन अप टिल नाउ अगर हम आज की बात करें तो इट इज़ इंटीग्रेटेड विद ऑल द मेजर ब्राउजर्स, इट वर्क्स सीमलेसली अक्रॉस ऑल द मेजर ब्राउजर्स, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली डेवलप्ड और प्रपोज्ड इन द 2006, तो 2006 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, और अगर आप इसके, और ये कॉन्टीन्यूसली अपडेट हो रही है, ठीक है, इसके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। अगर आप इसका विकीपीडिया पेज देख लें तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, ये किस तरह बेसिकली 2006 में किस स्टेटस पे थी और आज बेसिकली ये किस स्टेटस पे है, ठीक है। सो सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006 इट हैज़ टेकन ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द वेबसाइट्स एंड कंपनीज लार्ज एंड स्मॉल, तो उसके बाद से इवन नाउ टिल टुडे बेसिकली, ठीक है। तो जो मेजर पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस हैं, दे यूज दिस लाइब्रेरी, ठीक है। एज ऑफ 2019 jQuery इज बीइंग यूज्ड बाय द 73% ऑफ द 10 मिलियन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स, ठीक है। तो 10 मिलियन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, उसमें 73% ऑफ द वेबसाइट्स स्टिल यूज दिस बेसिकली jQuery लाइब्रेरी, ठीक है। अब इस जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है ना, यू कैन गो एट दिस लिंक एंड देयर यू कैन फाइंड अ सर्वे। बेसिकली यहाँ पे सर्वेज शेयर किए जाते हैं, टेक सर्वेज, जो कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स असेस करते हैं, और ये जो फाइंडिंग्स हैं कि 10 मिलियन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स में स्टिल यूज देम, वो उनको प्रेजेंट करते हैं फॉर द एंड यूजर्स, ठीक है। तो आप इस लिंक पर जाके फर्दर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। द फाइनल पॉइंट विच इज़ द पॉइंट नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, which I have told you a while ago as well. So it is not a programming language basically, ठीक है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। It is just a library which provides a set of helper functions and provides a set of short syntax, but it is not language. It doesn't provide how to declare, write functions and other things which are related to the any of the programming language, ठीक है। So hopefully you've got an idea. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो है बूटस्ट्रैप 5 में आपने कहा था कि jQuery यूज नहीं होती, हाँ जी, आपने कहा था डायरेक्ट सकते हैं, तो बिल्कुल। बूटस्ट्रैप 5 में ये कमांड नहीं वो कर सकते जो $साइन है और ब्रैकेट में जो आपने इधर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये गुड क्वेश्चन। इसमें ये है कि बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर तो आपके पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, उसमें आप बूटस्ट्रैप के अंदर कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं करते, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जब मैं कह रहा था ना कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर एट द बैक एंड jQuery को उन्होंने रिमूव कर दिया, तो दैट मीन्स कि उन्होंने जो एट द बैक एंड कंपोनेंट्स क्रिएट करने में जो प्रोग्रामिंग की है ना, उसके अंदर से jQuery के फंक्शंस को रिमूव कर दिया। तो जो एंड यूजर्स है ना, जो आप हैं बेसिकली,
आप बूटस्ट्रैप जब लाइब्रेरी यूज करेंगे उसमें जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कैरोसेल को यूज करेंगे जिसके अंदर इफेक्ट्स एडेड हैं, जिस तरह नेविगेशन बार है जो कि रिस्पॉन्सिव होती है, जब आप स्मॉलर स्क्रीन पे जाते हैं तो वो आपके पास एक बटन आ जाता है ना, ठीक है। तो अब आप जब आप वो कंपोनेंट्स यूज करेंगे तो बेसिकली एट द बैक एंड लाइब्रेरी इज नॉट यूजिंग jQuery, इट इज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपने तो सिर्फ कंपोनेंट्स को यूज करना है ना, आपने सिर्फ क्लासेस मेंशन करनी है, ठीक है। आपने उसमें jQuery के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करनी जावास्क्रिप्ट में। जब आपने सॉरी बूटस्ट्रैप के अंदर आपने jQuery के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करनी। आपने जब jQuery के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो फिर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर करेंगे जिसकी एक्सटेंशन होगी .js फाइल। जिस तरह के हम रिसेंटली, जिस तरह मैंने आपको लैब सेशनल दिया था, तो लैब सेशन में तो आपने सिमिलर फाइल के अंदर ही राइट कर दिया था ना, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कोड। लेकिन अगर आप उसको एक्सटर्नल फाइल में लिखते तो खुद JS फाइल के अंदर लिखते, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली उसका मकसद ही यही है कि आप कंपोनेंट्स को यूज कर लें विदाउट राइटिंग एक्सप्लिसिट कोड इन द जावास्क्रिप्ट और jQuery, ठीक है। तो आपको उसमें जावास्क्रिप्ट राइट करने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह CSS राइट करने की जरूरत नहीं होती। CSS के भी जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो CSS की क्लासेस मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास इज इक्वल टू बटन, तो उसमें उस बटन को सारा वो मॉडिफाई कर देती है। इसी तरह जो कैरोसेल है और आपके पास और जो बेसिकली नेविगेशन बार है, जिस तरह वो रिस्पॉन्सिव जो होती है बटन के साथ आपके बटन आ जाता है, जो कि हमने लैब में भी किया था। तो उसमें जब आप बटन पे क्लिक करते थे तो आप बेसिकली आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो नेविगेशन बार के आइटम्स डिस्प्ले हो जाते थे ना। तो यू वर नॉट बेसिकली कोडिंग in any of the JavaScript language, either plain or the jQuery or whatever it is. Basically, you were using the functionality provided by the Bootstrap. Hopefully, you've got an idea. ठीक है सर, हम वो कॉल नहीं करते या इसका जो इंपोर्ट नहीं करते, डायरेक्टली यूज करते, क्या ही सर, सही समझ नहीं आया। हाँ, तो हम जब बेसिकली इस बटन पे क्लिक करते थे तो उसके अंदर जो क्लासेस थी उन क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने एट द बैक एंड लिंक किया हुआ था फंक्शंस को, ठीक है। और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद जो कि फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट थे jQuery लाइब्रेरी के ऊपर, jQuery.min.js के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो अगर आप jQuery उस बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर ऐड ना करते तो फिर आपका ये जो इवेंट्स थे, फॉर एग्जांपल क्लिकिंग ऑन द बटन, दैट वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप आपको जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर यूजिंग द फंक्शनैलिटी। इट डजंट बेसिकली गिव यू द ऑप्शन टू एडिट द और राइट योर ओन जावास्क्रिप्ट कोड। तो जब फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं तो उसका पर्पस भी यही होता है कि आपने शॉर्टर टाइम में ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन करनी है, जो डेवलपर्स हैं उनका टास्क को सिंप्लीफाई करना है। अदरवाइज अगर आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर ये नेविगेशन बार जो है ये अवेलेबल ना हो तो आपको खुद इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन राइट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स का फंक्शन राइट करना पड़ेगा। उस फंक्शन के अंदर फिर आप जाके खुद इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि ये जो हाइट है, बेसिकली ये हाइट होती है ना, ये नेविगेशन बार जो आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आ रही होती थी, बेसिकली इसकी हाइट को ज़ीरो करेंगे या इंक्रीज करेंगे उसके अंदर आइटम्स को खुद से। तो उसमें हो सकता है कि आपके 50 से 60 स्टेटमेंट्स लगें jQuery की या जावास्क्रिप्ट की खुद से जब राइट करें। लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं और वो एट द बैक एंड वो कंपोनेंट्स किस लैंग्वेज में डिफाइंड है दैट मैटर्स। तो बूटस्ट्रैप 5 में उन कंपोनेंट्स को उन्होंने jQuery लाइब्रेरी से शिफ्ट करके प्लेन जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यस सर, ठीक। सही, चलें। तो this was the introduction of the jQuery library, and then we are going to look at the advantages, ठीक है। So what are the advantages? First advantage is it simplifies the common JavaScript tasks, ठीक है। तो जो कॉमन जावास्क्रिप्ट टास्क हैं बेसिकली वो उनको सिंप्लीफाई कर देता है, उनकी इंप्लीमेंटेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। तो jQuery considerably simplifies the common JavaScript tasks. Now you can easily create feature rich and so whatever. So one of the implementation is Ajax. अगर अभी तो आपके पास fetch API भी आ गई है, लेकिन पहले आपके पास XHR API होती थी, XML HTTP रिक्वेस्ट API जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एटलीस्ट आपको 10 to 15 लाइन्स ऑफ कोड राइट करना पड़ता था फॉर मेकिंग एन एजेक्स कॉल, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब jQuery लाइब्रेरी आई तो उसमें आपने 3 to 4 एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल $.ajax, ठीक है। उसके अंदर 3 to 4 पैरामीटर्स हैं जो कि आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी एजेक्स कॉल इनिशिएट हो जाएगी। सो दिस इज द वे इट हैज सिंप्लीफाइड द
कॉमन जावास्क्रिप्ट टास्क। इसी तरह जो इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा था कि इफेक्ट्स आपने ऐड करने हो तो उसको भी फॉर एग्जांपल इसने रिड्यूस किया। So by reducing the number of lines of code and by giving a kind of functions for implementation, basically it has simplified the common JavaScript task. Second, as a result of simplification of the tasks, it saves lot of time, which is the second point. तो जब सिंप्लीफाई हो जाता है कोडिंग तो फिर बेसिकली आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो टाइम सेविंग का इफेक्ट ये है कि आपके पास इनबिल्ट इफेक्ट्स और सेलेक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एंड कंसंट्रेट बेसिकली आप तो रेस्ट ऑफ द सेव टाइम यू कैन कंसंट्रेट ऑन अदर डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। तो बीइंग द डेवलपर it has saved the times of the developers. And then at the third point it says that it is easy to use, ठीक है। if you know basically basic web technologies like HTML, CSS and JavaScript, you can easily start using the jQuery library. The fourth point says that it is compatible with the browsers. So it is compatible with all the major browsers that are in use today. And at what point they are made compatible to different browsers, that information is basically given in this link. तो अगर आप इस लिंक पे चले जाएं तो इसको आप थोड़ी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स पे jQuery के किस वर्जन को किस फॉर एग्जांपल ब्राउज़र के वर्जन के अंदर कंपैटिबल किया गया, तो थिंग्स लाइक दैट यू कैन लुक एट दिस लिंक, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, you don't have to basically pay for using the jQuery library. You can simply download it and start using it, ठीक है। So these are the set of advantages of the jQuery library. सर इसमें एक क्वेश्चन था कि कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है तो ब्राउज़र को कंपैटिबिलिटी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। So, अगर जावास्क्रिप्ट उसके अंदर है तो कंपैटिबिलिटी कैसे अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र सपोर्ट करती है तो फिर jQuery को सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर क्योंकि jQuery जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है। हाँ बेस्ड है, लेकिन इसके अपने फॉर एग्जांपल इसका अगर सिलेक्शन मेथड डिफरेंट है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये है $साइन और $साइन जावास्क्रिप्ट jQuery ऑब्जेक्ट के साथ सिलेक्शन मेथड है और फिर उसके बाद इसके अपने मेथड्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड है पहले फॉर एग्जांपल हाइड ना, विच वाज सपोर्टेड इन एट सम फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम के 5th जो वर्जन 5 था उसके अंदर सपोर्टेड था 5.0 के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने इस हाइड मेथड को फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया, इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया। पहले हाइड मेथड जो था वो बड़ा सिंपल किस्म की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा था, लेकिन उसको उन्होंने अपडेट किया। तो अपडेट करने के बाद वेदर बेसिकली दैट ब्राउज़र सपोर्ट्स दैट फंक्शन और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अटैच तो कर देंगे लाइब्रेरी को, लेकिन उसके अंदर जो ब्राउज़र है क्या वो भी सपोर्ट करता है या नहीं, उसको रीड कर सकता है या नहीं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो एट द बैक एंड जावास्क्रिप्ट ही है एट द लोएस्ट लेवल, लेकिन इसके अपने भी फंक्शन है ना। इवेंट्स जिस तरह ट्रिगर होते हैं दैट इज बेसिकली डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल इसके जो अर्लियर वर्जन था उसमें इवेंट्स डिफरेंट तरह ट्रिगर हो रहे थे, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक के क्रॉस हो रहे थे, उसको उन्होंने चेंज करके सिंपल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ब्राउज़र के अंदर वो फंक्शनैलिटी ना हो कि वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। तो आप अगर बेशक लेटेस्ट वर्जन को अटैच भी करते हैं, लेकिन it won't be possible for the browser to understand what is going on in the background. So this is what is, ठीक है। तो प्लेन जावास्क्रिप्ट का तो इशू नहीं है। प्लेन जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल इशू होता है जब भी अपडेट्स आती हैं तो ब्राउज़र आपका उनको पिक नहीं कर पाता। तो jQuery लाइब्रेरी में भी जब आपके पास अपडेट्स आती हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका ब्राउज़र जो है वो इतना फुली अपडेटेड ना हो कि वो उसके जो लेटेस्ट सिंटैक्स है या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है। So these are sort of advantages, and then basically if we have to start using the jQuery library, then first we have to link the library, ठीक है। So linking jQuery is very much like linking an external JavaScript file, ठीक है। अब आपके पास जो प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल राइट करते थे, यू वर हैविंग लाइक फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द फाइल script.js, ठीक है, यू वर हैविंग दिस फाइल। तो अब आप इसको किस तरह लिंक करते थे? फॉर एग्जांपल यू वर यूजिंग स्क्रिप्ट टैग एंड इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग विद इन द सोर्स एट्रीब्यूट यू वर स्पेसिफाइंग। तो सेकंड पॉइंट नंबर 2 में आप देखें यू वर स्पेसिफाइंग इट लाइक दिस, ठीक है। इसमें तो jQuery.min.js स्पेसिफाइड है, लेकिन आप किस तरह करते थे? यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करूँ इट वुड बी लाइक दिस ना। तो jQuery बेसिकली आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल ही है, ठीक है, लेकिन विद अ डिफरेंट सिंटैक्स एंड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स व्हिच यू हैव नॉट रिटन बट रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है।
तो उसमें भी अगर आपने वन ऑफ द वे यू कैन अटैच इज बाय डाउनलोडिंग द jQuery फाइल फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन, या उनका जो वेब रिसोर्स है वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको अपने लोकल फोल्डर के अंदर रख के उसके बाद सोर्स के अंदर उसका पाथ दे दें। वन ऑफ द वे इज दिस। सेकेंडली यू कैन लिंक इट बाय यूजिंग द सीरियन अप्रोच, जिस तरह आप बूटस्ट्रैप के अंदर भी इसको लिंक करते थे, ठीक है। सीरियन अप्रोच मीनिंग दैट यू हैव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन लिंक ऑफ द jQuery लाइब्रेरी, और jQuery के अंदर भी jQuery.min.js और jQuery.js के जो ऑप्शन हैं ये अवेलेबल हैं, ठीक है। सो एट द थर्ड पॉइंट इट सेज दैट after you have linked the jQuery library, basically it is not the your code basically your code won't be in the jQuery.min.js। ये तो एक लाइब्रेरी है विच प्रोवाइड सेट ऑफ हेल्पर फंक्शन, लेकिन स्टिल आपको कोड एक सेपरेट एक्सटर्नल स्टाइल शीट सॉरी जावास्क्रिप्ट फाइल या इंटरनल फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो आपने अगर वंस jQuery.min.js को लिंक भी कर लिया विद योर ओन HTML फाइल लाइक दिस वन, स्क्रिप्ट source is equal to jQuery.min.js लाइक दिस वन, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो खुद से राइट करना है। मीनिंग दैट इन द जावास्क्रिप्ट कोड यू माइट बी सेइंग वेरिएबल ए, ठीक है, वेरिएबल ए दिस इज द जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद जो आप सेलेक्टर यूज कर रहे होंगे दैट वुड बी लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल इट इज आईडी सेलेक्टर, तो आईडी फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इस तरह ही राइट कर दें तो इट वुड सेव द HTML एलिमेंट विद दिस आईडी, उसका कंट्रोल जो है वो सेव कर देगा इन दिस वेरिएबल ए। तो ये आपके पास वेरिएबल ए है वॉर ए, दिस इज बेसिकली द जावास्क्रिप्ट कोड, जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड राइट करते थे। लेकिन जो आपने उसके बाद सेलेक्टर राइट किया, दिस इज नॉट बेसिकली द प्लेन जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर, इट इज अ jQuery सेलेक्टर, ठीक है। तो इस बेसिकली आपके पास जो HTML के अंदर एलिमेंट होगा जिसकी आईडी होगी विद दिस आईडी, कंट्रोल ऑफ दैट आईडी एलिमेंट विल बी सेव्ड इन द वेरिएबल ए, ठीक है। So this code basically you have to write in your own JavaScript file, which could be jQuery my jQuery script.js, ठीक है। लेकिन ये जो syntax है selector का that would be available in the jQuery.min.js। So whenever you have to use the jQuery library, you have to follow two steps. In the first step, you have to link the jQuery library in your HTML page, and in the second step, you have to basically write your own script which uses the helper function provided by the jQuery library. And along with that there would be JavaScript code in your library in your own file as well, ठीक है। उसमें कुछ कोड आपका अपना होगा, लेकिन दरमियान में इस तरह काइंड ऑफ मिक्स अप फंक्शंस होंगे जो कि jQuery लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किए हैं। So this is how it is going to work. Hopefully you have got an idea. So whenever you have to link your jQuery library, there are two methods. First one is by downloading and then placing it in some folder and then linking it with your HTML file. Second is by using the CDN approach. So after you have linked the jQuery library, then there are further two steps. In first step, basically you have to link the library, either of the two approaches defined above, and then you have to write your own script using the helper functions defined in the jQuery library. So hopefully it is now clear to you. So let's compare the JavaScript with the jQuery. JavaScript को jQuery से compare करते हैं। In the jQuery basically there is a jQuery object represented either using the $, ठीक है। इसके अंदर एक अपना jQuery का ऑब्जेक्ट है जो कि आप रिप्रेजेंट कर दें either by using the $, or by using the word jQuery, ठीक है। So basically whatever selector you have to specify, you have to wrap that selector inside the jQuery object, ठीक है। तो point number 2 says that कि आप जब इसका ऑब्जेक्ट राइट करेंगे इट वुड बी लाइक दिस वन, फिर $साइन के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के दरमियान आप सेलेक्टर राइट करेंगे। इट कैन बी आईडी सेलेक्टर, इट कैन बी क्लास सेलेक्टर, इट कैन बी एलिमेंट सेलेक्टर, और एनी ऑफ द सेलेक्टर दैट वी हैव सीन इन द CSS, ठीक है। आइदर आप $साइन से उसको सेलेक्टर को स्पेसिफाई करें और यू स्पेसिफाई अ कंप्लीट वर्ड jQuery बिफोर द पैरेंथेसिस, ठीक है। लेकिन अगर हम jQuery के सिलेक्शन मेथड को कंपेयर करें विद द जावास्क्रिप्ट, then an example below in the point number 5 basically gives us an idea, ठीक है। तो इस point number 5 में आपके पास एक example है, and this example says that at the top you have got an HTML, ठीक है। inside an HTML within a body tag you have got a div with the ID myDiv, ठीक है। उसके बाद जो first statement है नीचे, it is the JavaScript way of selecting the div,
तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई div, ठीक है। तो ये अगर जब आप स्टेटमेंट रन करेंगे तो इट गिव्स द डॉम एलिमेंट कंट्रोल जो आपके पास div है, ठीक है, इन द जावास्क्रिप्ट, इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आप यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे यूजिंग द jQuery, then you have to simply write $, and within the parenthesis you have to write id with the hash, preceding hash as well, जिस तरह आप CSS में राइट करते थे। आपको याद है CSS के सेलेक्टर में आप जब भी id को सेलेक्ट करते थे तो हैश id नेम, जब क्लास सेलेक्टर को सिलेक्ट करते थे डॉट क्लास, ठीक है, जब एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे सिंपल एलिमेंट नेम, फॉर एग्जांपल p या div, ठीक है, वट एवर सेलेक्ट। तो jQuery के अंदर जब पैरेंथेसिस के अंदर आप सेलेक्टर स्पेसिफाई करेंगे दैट वुड बी ऑफ द CSS टाइप। लेकिन जो jQuery का सेलेक्टर है इट वॉन्ट रिटर्न द सिंपल डॉम एलिमेंट, इट विल रिटर्न द jQuery ऑब्जेक्ट, फिर ये jQuery ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसको बेसिकली आप किसी भी अगर वेरिएबल में सेव करेंगे देन यू कैन अप्लाई jQuery मेथड्स, ठीक है। अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट से किसी भी डॉम एलिमेंट का कंट्रोल गेट करें, यू कांट अप्लाई jQuery मेथड्स टू दैट बेसिकली एलिमेंट, आप उसके ऊपर jQuery के मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते जो कि jQuery लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किए। लेकिन अगर आपने jQuery लाइब्रेरी के मेथड्स को अप्लाई करना है, यूज़ करना है, देन यू हैव टू यूज़ द सेलेक्टर प्रोवाइडेड बाय द jQuery एज वेल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूँ आपके स्टेटमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी हैव बीन राइटिंग सिंस नाउ, ठीक है। तो अभी तक हम इनको इस तरह की स्टेटमेंट्स को राइट करें जिसमें इनर HTML हो या इनर टेक्स्ट हो। लेकिन जब jQuery के अंदर राइट करेंगे तो $mydiv डॉट इनर HTML काम नहीं करेगा क्योंकि ये jQuery ऑब्जेक्ट है। इसमें jQuery का जो अपना मेथड है दैट इज HTML, सिंपल HTML मेथड। So HTML method is equivalent to the inner HTML property which is provided by the plain JavaScript. तो अगर आपने jQuery के मेथड यूज करने then you have to use the selection method of the jQuery as well, ठीक है। So this is the basic purpose of the this slide. Hopefully you have got an idea. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सिंटैक्स ऑफ द jQuery। तो हमने इससे पिछली स्टेटमेंट में भी सिंटैक्स देखा था, बट दिस स्लाइड एक्सप्लिसिटली डिफाइन द सिंटैक्स। सो ईच ऑफ योर jQuery स्टेटमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द $, meaning that you have to specify some selector, and going to terminate or end with the semicolon, like in the context of the JavaScript as well, ठीक है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, दैट इज प्रोवाइडेड इन द पॉइंट नंबर 3। It says that first you have to provide the selector and then you have to write the action which is to be taken on the selected element, ठीक है, और set of elements। तो नीचे एग्जांपल जो है that even gives the most specific examples। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, it says that $p dot hide, तो it hides all p elements, ठीक है। अब देखें at the back end it is kind of iteration is also going on, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ के टैग्स हों तो ये जो सेलेक्टर है $p, दिस इज एन एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इट विल सेलेक्ट ऑल 3 पैराग्राफ्स एंड हाइड ऑल ऑफ देम, इन तीनों को हाइड कर देगा, मीनिंग दैट देयर इज अ काइंड ऑफ लूप गोइंग ऑन एट द बैक एंड, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही काम हाइड वाला करना हो अगर प्लेन जावास्क्रिप्ट में, तो आप क्या करेंगे, वन ऑफ द वेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, या हाँ टैग नेम, ठीक है, क्योंकि ये टैग नेम है एलिमेंट, टैग नेम के अंदर p स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास किसी वेरिएबल के अंदर ps पैराग्राफ्स, ठीक है, ps स्टैंड फॉर पैराग्राफ्स आ जाएंगे। फिर आप इनको लूप करेंगे, पैराग्राफ्स को फॉर एग्जांपल p लेस देन i इज इक्वल टू 0 लेस देन ps डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फिर आप बेसिकली उसके अंदर उसकी क्लास को ऐड कर सकते हैं या किस तरह भी उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, तो ps ऑफ i डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। आई थिंक दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। नहीं तो आप जिस तरह हमने वो किया था उसके क्या कहते हैं वैलिडेशन के अंदर, ps ऑफ i डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हाइड, तो ये आप CSS के अंदर क्लास नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। CSS के अंदर ये क्लास नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो रन टाइम पे ये क्लास इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के साथ जो जिसके ऊपर लूप कर रहे हैं उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो वो इसके अंदर आप स्टाइल के अंदर जाएंगे और हाइड के अंदर बेसिकली आप लिख देंगे डिस्प्ले
कॉलन नन। देखें आपने अगर प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर करना होगा, दिस इज द वे बेसिकली यू हैव टू यूज फॉर हाइडिंग, ठीक है। So while in the case of the jQuery, you have to simply write this statement p dot hide, and then using this you can hide all of the paragraph elements, okay. And in the second example it says dot test dot hide. This is the class selector dot test, और उसके ऊपर ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी क्लास टेस्ट है उनको हाइड कर देंगे. एंड देन इन द थर्ड एग्जांपल इट सेज हैश टेस्ट डॉट हाइड. तो इसमें इट हाइड्स ऑल दो, it hides the element because id is unique, so it will hide the element which has got the id of test inside it. Okay, so this is the basic jQuery syntax. So each of these statements must terminate with the semicolon as well. तो ये मैंने semicolon यहाँ पे add नहीं किया, तो यहाँ पे semicolon भी होगा. तो your statement is starting by the dollar sign. Within the parentheses you are specifying the selector, and then you are using the methods provided by the jQuery. Hopefully you have got an idea. कोई question हो तो आप पूछ सकते हैं. सही, नीचे आपने दो प्रोजेक्ट्स लिखी हैं. यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले को नन कर दें, यहाँ पे हम लोग एक क्लास नेम ऐड करते हैं, हाइड है, दोनों करना पड़ता है हमें. नहीं दोनों नहीं है, ये तो मैंने दो ऑप्शन, दो पॉसिबिलिटीज लिखी हैं. एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये भी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं. इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी का मुझे एग्जैक्ट सिंटैक्स नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने ना सेकंड पॉसिबिलिटी लिखी थी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये है कि आप वन बाय वन हर एक पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देंगे. इफ दिस इज बेसिकली ट्रू जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, दैट्स फाइन. लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि हमने जावास्क्रिप्ट की फॉर्म वैलिडेशन में देखी थी, वो तो आपको वो मुझे कंफर्म है ना. तो उसमें पी ऑफ एस डॉट क्लास नेम, तो अगर आपने रन टाइम पे कोई भी सी एस एस क्लास ऐड करनी हो ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, देन बेसिकली यू यूज दिस प्रॉपर्टी इन द जावास्क्रिप्ट. तो आप करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट के अंदर इस तरह पी ऑफ एस ऑफ आई डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, तो ये डबल कोट्स के अंदर ना आप क्लास स्पेसिफाई कर देंगे हाइड, और इस हाइड क्लास के क्रॉस आप CSS में जाके उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर देंगे. तो इससे भी आप बेसिकली वही अचीव कर सकते हैं जो इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट्स थी. तो इससे मैंने दो पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, दोनों राइट करना मस्ट नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, तो ये सेकंड ये पॉसिबिलिटी, ये हमने अगर आप जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के लेक्चर देखें तो उसमें सबसे आखिर वाला जो स्लाइड है उसमें ये वाला मेथड यूज़ किया है फॉर एडिंग द क्लास इनटू द एनी ऑफ द HTML एलिमेंट एट द रन टाइम. Next, in the last slide we have seen this jQuery syntax. So in the jQuery selector part, basically आपके पास जो डॉलर साइन के बाद parenthesis होती है ना, double quotes, you can write the selector. So it is important to note that in the last slide you can see as well कि आपके पास जो selectors थे ना p dot test hash test, so this resembles with the CSS selection method. अगर आप CSS के selection method को रिकॉल करें तो उसमें तो एक सिंपल सेलेक्टर्स होते थे जिसमें हैश आईडी डॉट क्लास और सिंपल एलिमेंट था. फिर आपके पास कम्बिनेटर सेलेक्टर्स भी होते थे CSS में, फॉर एग्जांपल डिसेंडेंट सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग. फिर आपके पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होते थे, फॉर एग्जांपल href ऑफ वट एवर वैल्यू, ठीक है, href भी होता था. फिर आपके पास इस तरह होता था इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स. तो ये जो जितने भी CSS के अंदर सिलेक्शन मेथड्स हैं ना, you can use all of those selection methods in the jQuery as well in the similar way. Syntax भी same होगा. So this is the way it simplifies the task, जो हम कहते हैं ना simplification of the task. तो आपने अगर plain JavaScript के अंदर कोई भी element select करना है तो either you will use the document dot get element by id और class name और tag name और query selector, ठीक है, query selector से भी आप कर सकते हैं, query selector all का method use कर सकते हैं. So in a way you have to memorize more number of methods, a different method, ठीक है, as compared to the CSS. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि CSS का जो सिलेक्शन मेथड का नॉलेज है वही मैं रीयूज करूं in some other way, then jQuery is the basically library which allows you to do that, ठीक है. तो in a way आपका पास जो पॉइंट नंबर 2 है इस साइड के अंदर, it says that jQuery has done a great job of making the task of selecting an element or elements easier by mimicking that of the CSS. So the selection method of the jQuery resembles or mimics the selection method of the CSS which you have used before, ठीक है. और इसके बाद ये नीचे इसके बेसिकली कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है, ये आप रीड कर सकते हैं. Then in the point number 5 there are more set of examples as compared to the last slide.
ठीक है, इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है, इट सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद द क्लास फीचर. सेकंड बेसिकली एग्जांपल सेलेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विद एन li एलिमेंट. ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर जैसे कहते हैं. ठीक है, थर्ड बेसिकली इज अ मल्टीपल सेलेक्टर एग्जांपल. तो आपको याद है CSS में अगर आपने किसी भी दो एलिमेंट्स के साथ सेम स्टाइल्स अप्लाई करने, देन यू डोंट हैव टू रिपीट द स्टाइल. आप ये कर सकते हैं फॉर एग्जांपल div कॉमा p, और दोनों के लिए अगर कॉमन स्टाइल है तो वो एक ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे. ठीक है, तो jQuery के अंदर इफ यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स देन यू कैन स्पेसिफाई और सेपरेट देम यूजिंग द कॉमास, वेरी मच सिमिलर टू द CSS. इसी तरह CSS में आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर की कैटेगरी को देखें तो jQuery में भी आपके पास उसके पैरेलल में ऑप्शन अवेलेबल है एट्रीब्यूट सेलेक्टर का, और इसमें आप लिखते हैं target is equal to blank. So it will select all those anchor elements which have got the target attribute inside them, and value of that target attribute is blank. ठीक है, इसी तरह input type is equal to text, ये तो आप लैब सेशनल और आगे पीछे यूज भी कर चुके हैं. तो इनपुट फॉर्म एलिमेंट जो है उससे रिलेटेड आगे में आपने किसी भी किस्म का एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखना है, जिस तरह रेडियो बटन का लिखते हैं आप, इनपुट नेम इज इक्वल टू जेंडर. ठीक है, तो देन यू कैन यूज दैट selection method in the jQuery algorithm. So this is in a way when we say that it simplifies the task. So this is one of the aspect of simplification. Another aspect of simplification is the shorthand methods for providing complex functionality. ठीक है, which is like in the case of the plain JavaScript you have to write more number of lines of code. So these are the different aspects. ठीक है, and then within the selector there are categories of selectors. ठीक है, so this is the element selector. You have seen basically the element selector in the last slide. I'm just going to skip quickly out of this code. तो इसका थोड़ा सा आप कोड का सिंटैक्स ओवरऑल देख लें आप. ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक लाइब्रेरी को ऐड किया विच इज़ द jQuery लाइब्रेरी. यू मस्ट हैव टू ऐड दिस लाइब्रेरी टू एक्सेस द फंक्शनलिटीज ऑफ द jQuery फंक्शन. ठीक है, उसके बाद इन द HTML पार्ट यू हैव गॉट सेट ऑफ टैग्स, while in the script part, just give me 1 second. While in the script part there is one additional method which we have not discussed so far, and that method is the ready method. So ready method acts very much like the load method, ना जिस तरह आपके पास load का event होता था ना JavaScript में. So ready method ensures that so your jQuery code executes once your page is fully loaded. Once your page is fully loaded and ready for the events. ठीक है, तो जब भी हम jQuery कोड राइट करते हैं, we place that code within the ready method. ठीक है, ready method जो है आपके पास इसके अंदर ये callback function है which is an anonymous function, and within that function we have specified the selector $button. ठीक है, तो button is basically an element selector dot kick. So this is an event attached to the button. ठीक है, in the jQuery basically your events are also methods. तो आपका ये ready का event है ना, ये एक method है, इसके बाद parenthesis है. जब ये method है तो method के अंदर आप function भी पास कर सकते हैं, callback function. ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे एक anonymous function पास किया. अब क्लिक का इन मेथड, इसके अंदर भी आपने कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया विच इज़ एनोनिमस एज वेल, इसका नेम नहीं है. ठीक है, फिर इस मेथड के अंदर आपने अगेन एलिमेंट सेलेक्टर को स्पेसिफाई किया $p.hide. तो ये वही स्टेटमेंट है जो कि हमने रिसेंट स्लाइड में देखी है. सो ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन basically this jQuery code will hide all the paragraph elements in सारों को basically hide कर देगा on the click of the button. So here you have seen three things. First one is a ready method, second is the event attachment method which is a click, and third is the basically statement that you have to perform at the click of the button. ठीक है, on the right side sample examples भी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि आपके पास before clicking the button basically you were having this is a heading, this is a paragraph, this is another paragraph. When you clicked on this basically button, ठीक है, तो आपके पास इस HTML के अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं? You are having 2 paragraphs. ठीक है, so after clicking both of these paragraphs are hidden. तो jQuery इनको खुद ही हैंडल करके हाइड कर देती है.
नेक्स्ट इज द आईडी सेलेक्टर। तो एग्जांपल आपके पास बिल्कुल सेम है। फर्स्ट यू हैव टू लिंक द jQuery लाइब्रेरी, then basically you have to write the code within the ready method, then on the click of the button you have to basically specify the id selector which is hash test, and corresponding to this selection you have to basically hide the that particular element। तो इस सिनेरियो में आपके पास जो नीचे HTML एलिमेंट्स हैं इसमें 2 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपके पास id है विद द वैल्यू टेस्ट। So on the right side only that paragraph which has got the id test is hidden while the other paragraph is still visible या available, ठीक है। So this is the id selector। Then you have got the class selector, it is not that difficult either। तो आपने जो selector है उसको CSS selector को माइंड में रखना है, ठीक है, जब आपने selector राइट करना है। और उसके बाद statements का syntax क्या है? Statements start with a $sign, within that you have to specify the selector and then you have to write the action that you have to perform। And action is basically set of hide or slide up, slide down, जो भी आपने jQuery का मेथड यूज करना है। तो उसके बाद एक्शन के बाद आपने बेसिकली यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देना, दैट्स इट। So this is a syntax you have to keep in mind, and in the selector part you have to use the CSS way of select, and if you know these two things basically as part of the syntax you will easily get familiar yourself with the library, ठीक है। तो इसमें राइट साइड पे जो फॉर एग्जांपल ये नीचे जो HTML है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं h2 और पैराग्राफ जिनकी क्लास टेस्ट है, you can see it, ठीक है। in the script part now on the basis of the class selector $sign.test we have hidden basically those elements who have got the class test inside them। तो in this case अगर आपको राइट साइड पे आउटपुट नजर आए तो यहाँ पे h2 और फर्स्ट पैराग्राफ हिडन है, ठीक है। तो logically it is correct, it is understandable as well, not that difficult। and then there are range of selectors, ठीक है। तो सारों को मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया बट आई हैव प्रोवाइडेड अ टेबल। इस टेबल के अंदर हम कुछ जो सेलेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, while others you can look at by yourself in the this link, ठीक है। जो आपके पास टाइटल के अंदर एक हाइपर लिंक प्रोवाइडेड है ना, उस हाइपर लिंक पे जाएं तो आपके पास jQuery के जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो सारे आपको एज अ फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल, तो आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टू जस्ट टू go through the selectors provided in this table, so the first column says the syntax and second column says the description। तो फर्स्ट कॉलम में syntax है सेलेक्टर्स का और सेकंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन है कि ये सेलेक्टर्स किस तरह वर्क करते हैं या किस तरह एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। So on the left side as you have seen in the CSS as well, when you have specified static it will select all the elements। So in the jQuery you have to basically wrap this static with the jQuery object, meaning that $sign and parentheses, ठीक है। इसी तरह this का कीवर्ड आपको जावास्क्रिप्ट में भी आइडिया है कि this का कीवर्ड रेफर करता है टू पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको आप एट दैट मोमेंट फॉर एग्जांपल जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करें। क्लासेस में अगर देखें ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब उसके क्रॉस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी में उसके क्रॉस एक कॉपी जनरेट करता है ना। इसी तरह जो jQuery है, अगर इसमें आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि हमने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें स्टेटमेंट राइट की थी $sign p.hide, so this statement will hide all the paragraphs, but if you want to hide any particular paragraph based on the event, for example आप चाहते हैं जिस पैराग्राफ के ऊपर इवेंट ट्रिगर हो उसी को मैंने हाइड करना है, then basically you have to write is like this कि आप तमाम पैराग्राफ्स के साथ क्लिक का इवेंट अटैच करेंगे, पैराग्राफ डॉट क्लिक, क्योंकि क्लिक इवेंट मेथड है तो इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर आप राइट करेंगे $sign this डॉट हाइड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया तो बेसिकली इस पैराग्राफ पे क्लिक का इवेंट होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, इसके साथ क्लिक का इवेंट एसोसिएट होगा, इसके बाद वो इस पैराग्राफ का कंट्रोल गेट करेगा जिसके ऊपर आपने क्लिक किया और उसी को हाइड करेगा। रेस्ट ऑफ द 2 पैराग्राफ्स विल नॉट बी हिडन। So basically this keyword refers to that particular element on which the event has been triggered। तो
selects the current HTML element. That's what it is written in the description part. ठीक है, तो this keyword is very much like in the जैसे जावा के अंदर या और लैंग्वेज के अंदर आप यूज करते हैं. Third selector basically uses p.intro class paragraph with the class intro. Select all p elements with the class intro. p column first selects the first p element. तो आपके पास फॉर एग्जांपल यही मैं एग्जांपल नीचे वाले दिखाऊं, इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं. तो अगर आप लिखेंगे p colon first सेलेक्टर के अंदर ना, तो इट विल सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ आउट ऑफ द ऑल अवेलेबल इन योर HTML एलिमेंट्स. ठीक है, जितने भी पैराग्राफ आपके HTML एलिमेंट्स में अवेलेबल हैं, डजंट मैटर द डेप्थ, जिस भी डेप्थ में हो, उनको फॉर एग्जांपल उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ को रिटर्न कर देगा. देन देयर इज अ सेलेक्टर ul space li first selects the first li element of the first ul. तो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है, एंड ul के बाद आपके पास स्पेस है ना. ठीक है, तो ul जो है वो फर्स्ट बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट करेगा आउट ऑफ योर HTML एलिमेंट्स, और li कॉलन फर्स्ट जो है उसमें से फर्स्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा. ठीक है, सेलेक्ट्स द फर्स्ट li एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ul. जबकि इससे नेक्स्ट वाला सेलेक्टर है, इट विल सेलेक्ट द फर्स्ट li एलिमेंट ऑफ ऑल द अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, तो ये तमाम के तमाम ul को सिलेक्ट करने के बाद उसमें से फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा ऑल द लिस्ट आइटम्स. ठीक है, ऑल लिस्ट आइटम्स, ऑल फर्स्ट लिस्ट आइटम्स ऑफ, नहीं बेसिकली आपके पास अगर मल्टीपल अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं तो उन सभी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है उनको सेलेक्ट करेगा. ठीक है, तो बी स्पेसिफिक. नेक्स्ट सेलेक्टर इज बेसिकली href सेलेक्टर. दिस इज एन एट्रीब्यूट वे ऑफ सेलेक्टर. ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लें. दिस इज एग्जांपल दैट वी हैव सीन द रीसेंट स्लाइड. दिस इज अनदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर. This is another attribute selector, and not equal meaning that it will select all those anchor elements which haven't got the value of the target attribute as blank. ठीक है, उनकी कुछ और वैल्यू है, उनको सेलेक्ट करेगा. ठीक है, then colon button, it will select all button elements and input elements of type button. तो आपके पास एक तो बटन का टैग होता है ना, ठीक है, और एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन होता है. इन दोनों को बेसिकली सिलेक्ट कर लेगा अगर आप कॉलन बटन स्पेसिफाई करेंगे. अगर आप सिंपल बटन करेंगे तो फिर ये सिर्फ बटन टैग को करेगा. ठीक है, tr colon even, it will select the even rows in the table. tr dot colon odd, it will select the odd rows in the table. ठीक है, all odd rows. तो इसको हम यूज भी करेंगे इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड. तो होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया कि आप सेलेक्टर्स किस तरह राइट करते हैं इन द jQuery. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, सॉरी कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर, कोई क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द jQuery इवेंट्स. ठीक है, तो अभी तक हमने jQuery का इंट्रोडक्शन देखा है और उसके बाद jQuery का सिंटैक्स देखा है. फिर हमने jQuery के अंदर सेलेक्टर्स किस तरह राइट करते हैं वो बेसिकली उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द jQuery इवेंट्स, कि jQuery के अंदर आप इवेंट्स किस तरह अटैच करते हैं. तो आपके पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक इवेंट्स के टेबल्स देखे थे ना, करस्पॉन्डिंग टू ऑल दोज इवेंट्स. फॉर एग्जांपल क्लिक, डबल क्लिक, HTML फॉर्म के फॉर एग्जांपल आपके पास इवेंट्स थे, चेंज, सेलेक्ट. Corresponding to all those events, roughly there are set of corresponding events available in the jQuery. But in jQuery, events are in the form of methods. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 को अगर आप राइट करें, jQuery enhances the basic event handling mechanism by offering the event methods. ठीक है, event methods available rather than simple events for most native browser events. ठीक है, जितने भी मोस्टली नेटिव ब्राउजर इवेंट्स हैं जो कि हमने प्लेन जावास्क्रिप्ट में देखे थे, करस्पॉन्डिंग टू दोज इवेंट्स jQuery प्रोवाइड्स द इवेंट मेथड्स. ठीक है, सम ऑफ दीज मेथड्स आर फॉर एग्जांपल रेडी. ठीक है, जो लोड के क्रॉस एग्जीक्यूट होता है व्हेन योर पेज इज फुली लोडेड. फिर क्लिक ऑन क्लिक जो था आपके पास इन द जावास्क्रिप्ट, इसमें आपके पास क्लिक इवेंट मेथड है. फिर की प्रेस का इवेंट मेथड है, फोकस है, ब्लर, चेंज, व्हाटएवर इवेंट सेट ऑफ इवेंट मेथड्स. ठीक है, एंड यू कैन कैटेगराइज इन द सेम वे दैट वी हैव कैटेगराइज इन द जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट.
तो इसमें आपके पास सेट ऑफ माउस इवेंट्स हैं, कीबोर्ड इवेंट्स हैं, फॉर्म, डॉक्यूमेंट और विंडो से रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। एंड हाउ यू कैन अटैच इवेंट हमने रिसेंट स्लाइड में भी देखा है, जब हम सेलेक्टर्स को देख रहे थे उसमें हमने इवेंट को अटैच करना सीखा है। लेकिन अगेन इन द पॉइंट नंबर 5 यू कैन सी कि वी कैन अटैच क्लिक इवेंट विद द बटन, सो $बटन डॉट क्लिक। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यही स्टेटमेंट राइट करेंगे, सिर्फ ये स्टेटमेंट राइट करेंगे जिसमें बटन को सिलेक्ट किया और उसके साथ क्लिक के इवेंट को अटैच कर दिया, तो इट विल अटैच क्लिक इवेंट विद ऑल द बटन टैग्स। लेकिन व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन टैग नथिंग विल हैपन, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी, किसी फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, लेकिन क्लिक का इवेंट जो है वो बेसिकली अटैच कर दिया, ठीक है। इसी तरह नीचे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपने तमाम के तमाम पैराग्राफ्स के साथ क्लिक के इवेंट को अटैच कर दिया, बट यू हैवंट रिटन द डेफिनेशन of the function which is to be executed on the trigger of the event, ठीक है। So let's see how you can attach event, basically how you can write definition of the function. So this slide is just basically it carries the DOM events and their corresponding jQuery events. जिस तरह हमने recent slide में देखा था ना selectors को, कि summary of selectors आपको मैंने दिखाया था, इसी तरह these are the summary of event methods available in the jQuery, ठीक है। So the first column says the category. Category means form events, keyboard events, mouse events, browser events and document events, ठीक है। Second column says that jQuery method, jQuery event method, ठीक है। Third column says that DOM event. तो DOM event वही event है जो कि आपके पास vanilla JavaScript के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। jQuery के अंदर, jQuery कॉलम के अंदर आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग jQuery event method अवेलेबल है। तो अगर आप इनको गो थ्रू करें, यू कैन इजीली सी के ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन सेलेक्ट, ऑन फोकस इन, ऑन सबमिट, ऑन की डाउन, प्रेस, की अप, क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट में थे और उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट जो आपके पास jQuery के अंदर है, जब गॉट ब्लर, चेंज, तो ऑन जो प्रीसीडिंग ऑन था इट हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। जो आपके पास ऑन था इट हैज़ बीन रिमूव्ड। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपको याद होगा जब आप ऐड इवेंट लिसनर मेथड से इवेंट्स को अटैच करते थे उसमें भी आप ऑन नहीं लिखते थे, उसमें भी आप स्ट्रेट वे क्लिक या चेंज इस तरह राइट करते थे। लेकिन जब आप एट्रीब्यूट वे से और मेथड अटैचमेंट वे से करते थे फिर आप ऑन क्लिक राइट करते थे, ठीक है। ये हमने 3 डिफरेंट वेज ऑफ अटैचिंग द इवेंट्स पढ़े थे इन द जावास्क्रिप्ट। तो इसमें ब्लर, चेंज, फोकस, तो लाइकवाइज वी हैव गॉट दीज करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ मेथड्स इन द jQuery, ठीक है। व्हाइल इन DOM देयर वाज नो होवर जावास्क्रिप्ट मेथड, उसमें आपके पास CSS के अंदर एक होवर की फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी होती थी जो कि सूडो क्लास जिसे कहते हैं ना, a:होवर हमने यूज़ किया था, लेकिन इवेंट नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जबकि jQuery के अंदर आपके पास होवर का इवेंट भी है। सो मीनिंग दैट while you are moving your mouse over any of the HTML element, so if the coordinates of the mouse pointer changes, this hover event will be triggered, ये इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो दिस इवेंट मेथड इज अवेलेबल इन द jQuery। इसी तरह माउस से रिलेटेड आपके पास सारे इवेंट्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर थे jQuery के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। टॉगल जो है दिस हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। ये अब जो लेटेस्ट वर्जन आया ना jQuery का उसमें से ये रिमूव कर दिए गए। इस तरह एरर, ब्राउज़र से रिलेटेड एरर, रीसाइज, स्क्रॉल, जब आप ब्राउज़र को स्क्रॉल करते हैं या उसको रीसाइज करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास ऑन लोड था ना, इसके क्रॉस पहले लोड इवेंट होता था, load event method in the jQuery. This has been removed as well, and now we have only got the ready event, which works very much like the load event. And similarly for the unload event, we have got the unload event in the jQuery. Okay? So these are the corresponding set of methods available in the jQuery and their for example events in the JavaScript. ठीक है, जो plain JavaScript के अंदर। तो ऊपर जो उसके टाइटल में एक मैंने URL दिया, this is the URL from where I have got this set of event methods, ठीक है। एक समरी जो है यहाँ से मैंने कलेक्ट की। फर्दर यू कैन गो टू दिस बेसिकली URL एंड देन लुक एट what has been provided as that URL, ठीक है। होपफुली URL आया। कोई क्वेश्चन तो नहीं? नेक्स्ट, तो हमने रेडी इवेंट को डिस्कस तो कर लिया है इन द रिसेंट स्लाइड, बट देयर वाज नो फॉर्मल बेसिकली स्लाइड वेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट ना। तो ये वो स्लाइड है जिसके अंदर रेडी इवेंट की डिस्क्रिप्शन है। सो jQuery हैज अ रेडी इवेंट, रेडी,
which can be called when the HTML document is ready to be altered. ठीक है, जो जब fully load हो जाता है. So before triggering any jQuery to traverse and manipulate a page, it is best to wait until the DOM is finished loading. ठीक है, जब तक DOM finish नहीं हो जाता, you don't want कि आपका jQuery का event या कोई भी event trigger हो. तो अगर आप अपने सारे के सारे कोड को, jQuery के कोड को प्लेस कर दें within this ready method, then you are basically guaranteeing that it will not be executed before the complete loading of the web page. ठीक है, and there are two ways you can write the definition of this ready function. First one is the one that we have used in the recent slide. ठीक है, ये वो तरीका है जिसको हमने recent slide में यूज किया. $document.ready, and within the callback function basically you have to write the jQuery code. ठीक है, and in the second way is $function, और दिस इज अ शॉर्ट हैंड वे. इसमें आपके पास ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया. $, और पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली आपने अनोनिमस फंक्शन राइट कर दिया स्ट्रेट अवे. सो बोथ दीज मेथड्स आर वैलिड. ठीक है, अब इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. बोथ ऑफ दीज मेथड्स वर्क. Then once you have basically your event methods ready, then you have to write the definition of the functions that is to be executed on the trigger of the event. ठीक है, अब इवेंट्स तो आपने अटैच कर लिए, लेकिन उसके क्रॉस आपने कुछ फंक्शन डेफिनेशन भी तो राइट करनी है. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन ट्रिगरिंग द इवेंट. फॉर एग्जांपल व्हाटएवर द इवेंट यू हैव ट्रिगर्ड. So there are two ways you can attach the function definition. First one is the one that we have seen in the recent slide. For example, first approach is to pass function to the event. तो आपके पास पहला तरीका ये है कि आप रेडी मेथड के अंदर anonymous function और उसके बाद क्लिक का इवेंट, इसके अंदर फंक्शन, ये जो anonymous function क्लिक के अंदर है ना, this is the basically definition of the function that is to be executed on the trigger of the event, जिसके अंदर this dot hide लिखा हुआ है. It will hide only that particular paragraph on which this click event is triggered. लेकिन दूसरा तरीका ये है, सेकंड मेथड, जो सेकंड अप्रोच है, वो ये भी हो सकती है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के फंक्शन के अंदर p डॉट क्लिक के अक्रॉस एक फंक्शन को कॉल कर लें, हेलो. ठीक है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ट्रेडिशनल वे से, जिस तरह आप नॉर्मल फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं, नीचे फंक्शन हेलो और उसके अंदर बेसिकली आप दिस डॉट हाइड राइट कर दें, तो इट विल आल्सो वर्क. ठीक है, दोनों तरीके काम करेंगे. तो आइदर वे यू कैन राइट द डेफिनेशन विद इन द कॉल बैक फंक्शन, और you can call from the callback, but you can write the definition in the traditional way like you used to write previously. तो फर्स्ट मेथड बेसिकली ज़्यादा प्रेफरेबल है. ठीक है, क्योंकि वहीं पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ज़्यादा कंट्रोल रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कोड की, कि इस इवेंट के क्रॉस में क्या कोड राइट करने जा रहा हूँ. अदरवाइज अगर आप सेपरेट प्लेस पे लिखें तो देयर इज अ काइंड ऑफ डिसकनेक्ट between the calling of the function and the definition of the function. ठीक है, so normally we use the first approach for executing the function on the trigger of event, and then you can bind multiple events in jQuery which was not possible in the JavaScript. ठीक है, तो jQuery के अंदर आपके पास एक मेथड है on method. This method basically allows you to bind multiple, basically allows you to attach multiple events with any of the HTML selector and then write definition for each of the event. ठीक है, so straight away if we move towards the example, so here down in the HTML part we have got a paragraph. ठीक है, there is only one paragraph. In the script part within the ready method, you have basically provided a selector, p selector, which is an element selector. And then using the on method, you have attached three different events. First one is the mouse enter event, second is the mouse leave event, and third is the click event. ठीक है, तो इसमें on के बाद आप parenthesis लगाएंगे, इसका syntax थोड़ा देखना है आपको. उसके बाद आप braces के अंदर तीनों जो बेसिकली events हैं उनको की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि आपने जब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तो आपको पता था कि की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं. तो की कॉलन वैल्यू, तो की पार्ट में क्या होगा, आपका इवेंट का नेम होगा. फॉर एग्जांपल माउस एंटर, माउस लीव, क्लिक, और कॉलन के बाद आपका फंक्शन की डेफिनेशन होगी दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द ट्रिगर ऑफ द इवेंट. तो माउस एंटर के क्रॉस आपके पास एक एनोनिमस फंक्शन है, माउस लीव के क्रॉस आपके पास एक फंक्शन डेफिनेशन है, और क्लिक के क्रॉस आपके पास एक फंक्शन डेफिनेशन. और फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन में आपने दिस बेसिकली सेलेक्टर के साथ
selects the current HTML element dot CSS. This is the way of adding the CSS in the jQuery. तो CSS एक मेथड है जो कि आपको CSS अटैच करने में हेल्प करता है इन द jQuery. जावास्क्रिप्ट में अगर रिकॉल करें आप तो आपके पास जो इनलाइन स्टाइल्स थे वो आप करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है. और उसके बाद आपके पास एक गेट कंप्यूटेड स्टाइल था जो कि आपको बेसिकली कंप्यूटेड स्टाइल्स को रिटर्न करता था. लेकिन ये क्यूरी में आपके पास जो मेथड अवेलेबल है दैट इज़ इन द बेटर फॉर्म. आपके पास दो मेथड्स नहीं होंगे इसके अंदर, एक इनलाइन के लिए अलग और एक्सटर्नल के लिए अलग. इसमें आपके पास सेम ही CSS मेथड है दैट यू कैन यूज फॉर ऑल पर्पज, आइदर टू गेट द वैल्यूज ऑफ द स्टाइल्स और टू सेट द वैल्यूज ऑफ द स्टाइल, ठीक है. तो इस CSS मेथड के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर और कॉमा उसकी वैल्यू, ठीक है. फिर सेकंड जो आपका माउस लीव का इवेंट है उसके क्रॉस जो एनोनिमस फंक्शन है इसके अंदर हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया और CSS मेथड के क्रॉस एक दूसरी बेसिकली CSS को अटैच कर दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू. और फिर थर्ड जो इवेंट है इसके अंदर हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक थर्ड बेसिकली CSS स्टेटमेंट राइट कर दी. सो यूजिंग ऑन मेथड in the jQuery you have attached 3 set of events and then corresponding to each event you have basically triggered a single function definition, ठीक है. This is how basically you can use the on method in the jQuery. तो राइट साइड पे इसकी जो आउटपुट है उसको भी आप देख लें, इसमें सिर्फ माउस एंटर और लीव के लिए रिटर्न है, ठीक है. क्लिक पे मैंने राइट नहीं की. तो बिफोर माउस एंटर आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है. जब आप माउस को एंटर करेंगे तो उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाएगा. तो आपके पास ये काइंड ऑफ लाइट ग्रे है, ठीक है. अगर आप सिंपल ग्रे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है. उसके बाद माउस लीव के बाद आपके पास लाइट ब्लू है विच इज़ दिस वन आफ्टर माउस लीव. तो दिस इज़ हाउ यू कैन अटैच मल्टीपल इवेंट्स इन द jQuery. So up to this point we have covered the basics of the jQuery. अब आपको इस चीज़ का आइडिया है कि jQuery लाइब्रेरी यूज़ करने का पर्पस क्या है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द jQuery लाइब्रेरी, ठीक है. बेसिकली इट्स प्रोवाइड सेट ऑफ हेल्पर फंक्शंस, इट अलाउज अस टू राइट more functionality or implement more functionality with less number of lines of code, ठीक है. And it simplifies the common JavaScript task, ठीक है. It is compatible with all the browser, it is easy to use, ठीक है. It provides short syntax. और फिर उसके बाद आपने इसकी इंट्रोडक्शन भी देखी है कि jQuery कब रिलीज हुई. फॉर एग्जांपल इन 2006 इट वाज रिलीज्ड एंड अप टिल टुडे बेसिकली अभी भी अगर आप जावा विकीपीडिया पे जाकर देखें तो इसका लेटेस्ट वर्जन रिसेंटली आया है, ठीक है. सो इट इज़ अपडेटेड अप टिल टुडे, ठीक है. और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ लाइब्रेरी विच हेल्प्स अस इन जावास्क्रिप्ट कोडिंग, ठीक है. एंड देन आफ्टर लुकिंग एट द पर्पस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द jQuery we move towards writing statements in the jQuery. And as part of the writing statements we looked at the jQuery syntax, how to write statements in the jQuery, ठीक है. syntax के अंदर फिर हम further depth में चले गए, selectors को देखा कि selectors किस तरह राइट करने हैं. selectors में हमने देखा कि selection method resembles with the CSS. तो हमारा जो selector राइट करने का प्रोसेस है that is basically simplified if we know the CSS selection method, ठीक है. फिर उसके बाद हमने कहा कि syntax भी देख लिया, selection भी. Then we have to attach the events as well, क्योंकि scripting is all about triggering the events के लिए. अदरवाइज तो आपके पास CSS भी है ना, अगर आपने events अटैच करनी हो then we use scripting ना. तो then we looked at event methods, and event methods there are multiple categories like we have seen in the JavaScript, and corresponding to all those event methods we have got the corresponding set of jQuery method. Then we looked at how to write function definitions on the trigger of the events. Then from that point we move towards how to bind multiple events using the on method, ठीक है. So this was the basics of the JavaScript jQuery. अगर आपको ये आता है तो उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द कोड करना या jQuery के कोड को अंडरस्टैंड करना किसी और के कोड को, इट वॉन्ट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है. तो फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनवर्ड्स यहाँ से आगे जो है बेसिकली देयर आर सेट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द jQuery. अब हम एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं और एप्लीकेशंस रफली वही हैं जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखी थी, बट इन द jQuery वी हैव गॉट एक्सटेंडेड सेट ऑफ फंक्शंस, एक्सटेंडेड सेट ऑफ फंक्शनैलिटी एज कम्पेयर टू द प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द DOM ट्रैवर्सिंग एंड ऑल्सो नोन एज DOM नेविगेशन, जिसमें पेरेंट चाइल्ड, जिसमें हम नोड रिलेशनशिप्स यूज़ करते थे इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है.
तो नीचे जो आपके पास एक स्क्रीनशॉट गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, इसको अगर आप देखें, so by looking at this screenshot you can recall what you have covered in the plain JavaScript as part of the DOM traverse. कि आप traverse करते थे using 3 different types of relationships: ancestor, descendant and siblings. In each of the category, parent node आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, फिर फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड नोड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड जो कि टेक्स्ट नोड्स और कमेंट नोड्स को इग्नोर करता है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, चिल्ड्रन, फिर सिबलिंग के अंदर भी आपके पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इफ वी कंपेयर दिस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विद द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय द jQuery, देन द नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपके पास जो ट्रैवर्सिंग मेथड है, दीज आर द jQuery ट्रैवर्सिंग मेथड्स। अब जो आपके पास अनसेस्टर कैटेगरी में जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड थे, दे वर सिंपली पेरेंट नोड या पेरेंट एलिमेंट भी होता है, ठीक है, लेकिन दे वर ओनली 2। अगर आपको याद होगा कि आपने जब लैब सेशन किया था, अगर आपने 2 स्टेप अबव मूव करना होता था, फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल आपने उसमें होता था ना आपके पास रेडियो बटन्स, तो रेडियो बटन से आपने मूव करना है और उसके आपके पास एक टेबल था, याद होगा आपको लैब सेशन के अंदर, ठीक है। उस टेबल के अंदर आपके पास रेडियो बटन के क्रॉस आपने रेस्ट ऑफ द जो कॉलम्स थे वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रीड करना था ना। तो उसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या था कि आपको रेडियो बटन से बैक मूव करना था टुवर्ड्स रो, फिर आपको अदर टीजीज में मूव करना था ना। तो आप क्या करते थे कि रेडियो डॉट पेरेंट नोड करते थे, ठीक है। अगर फर्दर बैक मूव करना है तो फिर पेरेंट नोड करते थे, तो ये आपको पेरेंट ऑफ द पेरेंट पे चला जाएगा, लेके चला जाएगा, ठीक है। बट यू वर टू यूज ट्वाइस द पेरेंट नोड जस्ट टू मूव टुवर्ड्स द ग्रैंडफादर, ठीक है, पेरेंट ऑफ द पेरेंट। While in the jQuery you have got an extended set of methods for that purpose. Not only you have got a method to access the direct parent, but you can access all of the ancestors, parent, grandparent, great grandparent, and then moving on up to the HTML tags. तो आप किसी भी करंट नोड से HTML टैग तक किसी भी पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद दिस मेथड, विच वाज नॉट देयर इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह पेरेंट्स अनटिल, you can basically get the parents in according to some specific criteria as well, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अंटिल क्या करेगा कि अगर आप किसी भी करंट नोड से, फॉर एग्जांपल अगर आपने div को सिलेक्ट किया, div डॉट पेरेंट अंटिल, अंटिल के अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे फॉर एग्जांपल बॉडी, आप कहेंगे करंट एलिमेंट से स्टार्ट करो अप टू द बॉडी, जितने भी पेरेंट्स हैं वो रिटर्न कर दो। तो दिस बेसिकली इट इज गोइंग टू वर्क इन दिस वे। तो यहाँ पे आपके पास 3 मेथड्स हैं फॉर दैट पर्पस, ठीक है। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। इस तरह डिसेंडेंट्स में आपके पास वहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड होते थे, लेकिन इसमें चिल्ड्रन जो मेथड है, इट रिटर्न्स ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन इन द jQuery, और जो फाइंड है इट रिटर्न्स ऑल द चिल्ड्रंस, ऑल द डिसेंडेंट्स, डजंट मैटर व्हाट एट व्हाट स्टेप दे आर। जबकि आपके पास जो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और चाइल्ड नोड्स के प्रॉपर्टीज होती थी ना इन द जावास्क्रिप्ट, इन द वनीला जावास्क्रिप्ट, दे वर ओनली रिटर्निंग द डायरेक्ट चिल्ड्रन, वो बेसिकली डेप्थ में नहीं जाते थे, ठीक है, डिसेंडेंट्स नहीं रिटर्न करते थे बल्कि डायरेक्ट चिल्ड्रन रिटर्न करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो फाइंड का मेथड है, इट रिटर्न्स इनडायरेक्ट चिल्ड्रन एज वेल, मीनिंग दैट डिसेंडेंट्स एज वेल, ठीक है। फिर सिबलिंग के अंदर आपके पास सेट ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड सिबलिंग है, इट रिटर्न्स ऑल द सिबलिंग्स, नेक्स्ट रिटर्न्स द इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट ऑल रिटर्न्स द ऑल ऑफ नेक्स्ट सिबलिंग्स, नेक्स्ट until returns the sibling up to some specific criteria like parents until, previous जो previous sibling को रिटर्न करेगा, previous all जो है सारे के सारे previous siblings को रिटर्न करेगा, और previous until जो है वो किसी particular criteria के क्रॉस स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। Then in the category of filtering you have got another set of methods which are first, last and equal. First last works very much like first child node नहीं, it will return the first basically मैचिंग एलिमेंट इन द HTML। फॉर एग्जांपल आपके पास चाइल्ड रिटर्न नहीं करेगा, चाइल्ड में तो आपके पास पेरेंट्स होते हैं ना, इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई HTML एलिमेंट है जिसमें 3 divs हैं, तो इफ़ यू राइट div डॉट फर्स्ट इन द jQuery, ठीक है, इट विल रिटर्न द फर्स्ट div. If you write div dot last, it will return the last div, while the equal will return the div on depending upon the index. इसमें इंडेक्स होती है 0, 1, 2, तो अगर आप 1 राइट करेंगे तो सेकंड डिव को रिटर्न कर देगा, 0 राइट करेंगे तो फर्स्ट डिव को रिटर्न कर देगा, ठीक है।
तो इसमें पेरेंट का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आप फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड या चाइल्ड नोड में करते थे। इसमें आपको सिर्फ एलिमेंट के रेफरेंस की ज़रूरत है जिसको आपने एक्सेस करना है। देन विद इन द फिल्टरिंग देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ मेथड्स विच आर फिल्टर एंड नॉट। Filter category returns all those elements which match the criteria, and not category, not method returns all those elements which does not match the criteria. For example, अगर मैं कहूँ कि फिल्टर कर दो, जिस तरह हमने सिलेक्टर राइट किया था ना, tr:even, अब ये आपके जो टेबल है उसकी तमाम इवन रोज को रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, .css, और उसको बेसिकली जिस तरह आप वो करते थे ना कि उसके क्रॉस ऑल्टरनेट रोज को फॉर एग्जांपल हाईलाइट करना है, उनके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, जिस तरह वो स्ट्रिप टेबल होता है ना, तो यहाँ पे आप उसका बैकग्राउंड सेट कर देंगे। फिर आप करेंगे फॉर एग्जांपल फिल्टर ऑफ tr odd, तो ये तमाम ऑड रोज को रिटर्न कर देगा। तो फिल्टर मेथड रिटर्न्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच मैच द क्राइटेरिया, एंड नॉट मेथड रिटर्न्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट मैच द क्राइटेरिया। तो अगर आप नॉट ऑफ लिखेंगे, नॉट ऑफ tr odd, it will return the all even rows of the table, ठीक है। So these are the set of methods related to the jQuery which are available in jQuery which were not there in the JavaScript. तो there are different set of functionalities and extended हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, तो मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, होपफुली मैंने शायद किया भी हुआ। तो आपने इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर है ना, ये सारा ये जस्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को देख के नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करके आना है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में मैं जस्ट रैंडमली कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा और वो इसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ए रिपीटिशन। मैंने रफली आपको आइडिया दे दिया है कि इसके अंदर ये मेथड्स किस तरह वर्क करते हैं। यू नाउ यू वेरी मच नो कि बेसिकली इसके अंदर क्या है। बस आपने सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके जो फंक्शनलिटी है उसको थोड़ा ट्राई करके देखना है, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए आज का लेक्चर बेनिफिशियल था और यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट द jQuery. If you have got any question then you can ask.